Hello everyone, welcome to Shri Shritya Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our first introductory class of Mathematics class 7 in which we were going to discuss about the chapter named Integers. आज हम जो chapters discuss करने जा रहे हैं उसका नाम है Integers. So first take a look on the topics which we will discuss in it. So पहले हम discuss करेंगे introduction which is written here also. दैट वॉट आर इंटीजर्स बेसिकली होते क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, हम ये पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू द रूल्स बेसिक्स. देयर आर बेसिक सम रूल्स विच वर टू बी कीप इन माइंड while adding and subtracting integers that we will study in the next point. And next we will discuss about the additive properties of integers. There are some of the properties of additive properties which were to be discussed in it, and at final we will be discussing about the integers sign. So let's start. So first of all, integers होते क्या हैं, what are basically integers are. So इससे पहले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं. होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं. सो अब इंटीजर्स क्या होते हैं. बेसिकली इंटीजर्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. लेट्स अगर हम यहाँ ज़ीरो लेते हैं, द राइट साइड we used to take 1 2 3 4 all the positive numbers and so on, and the negative left side we used to take -1 -2 -3 -4 and so on. So basically integers क्या होते हैं, collection of whole numbers and negative numbers. Also zero, because zero is neither a positive number and neither nor a negative number, but still we used to take it as an integer. So what is the definition of integers? Big collection of numbers which contains whole numbers and negative numbers. तो इंटीजर्स क्या, कौन कौन से नंबर्स का कलेक्शन होता है, होल नंबर्स, जो कि जीरो से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड वो होल नंबर्स होते हैं, एंड नेगेटिव साइड मीन्स जो नेगेटिव साइड होता है उसे हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं. सो बेसिकली यहाँ से जो स्टार्ट होता है, जैसे सपोज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन. सो बेसिकली ये जो पॉजिटिव साइड होता है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड जो नेगेटिव साइड होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. So what I have written on the board, the big collection of numbers which contains whole numbers and negative numbers.
So whole numbers means starting from 0, in the positive side, the numbers which up to the infinity are whole numbers. It can also be termed as positive integers, and the negative numbers means negative integers. So this is all integers are. So now we will see how we can plot integers on the number line. So basically number line दिखता कैसे है? Suppose this is a line and here it is 0 and here all are positive numbers. Here all are positive numbers and here it is all negative numbers, -1, -2, -3 and so on. So अब suppose कोई एक इंटीजर लेते हैं, सपोज से -5, तो इसे हम अब इस नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करेंगे? सो ऑलवेज मेक श्योर कि हम जब नंबर लाइन नेगेटिव साइड से स्टार्ट करेंगे तो हमेशा 0 से ही स्टार्ट करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंडमली ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, -1, -2, -1, -2, -3. दिस इज रॉन्ग. हमें हमेशा स्टार्ट करना है 0 से. सो ये हमेशा ध्यान रखना. सो अब हमें प्लॉट करना है 5. सो अब हम इसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे एंड -4 एंड हियर इट इज -5. तो इस तरह से हम कोई भी नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं. अगर मैं बोलूँ कि इधर हमें +5 प्लॉट करना है, मीन्स अगर हम बोले कि हाँ आई हैव टू प्लॉट 5 हियर, सो हम उसे कैसे प्लॉट करेंगे? इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे and 5 it is plotted here. So in this way we can plot positive and negative integers on number line. So I hope you have you got a basic knowledge that what integers are. So now we will move on to the next topic, which is basic rules for adding and subtracting integers. There are some basics rule which we have to keep in mind while adding and subtracting integers. अब मैं आपको जो rules बताने जा रहा हूँ ये आपको लाइफ टाइम रिमेंबर करना है. मीन्स आपको you have to always, मतलब आपको हमेशा ये जो रूल्स हैं याद रखने पड़ेंगे अपने लाइफ टाइम में. बिकॉज ये जो रूल्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये आपको जब आप हायर क्लासेस में जाओगे उधर भी काम आएगा, एंड जब आप कॉलेज लेवल में जाओगे उधर भी ये रूल्स काम आएंगे while doing any sums. So what the basic rules are? So basically there are 4 rules. Suppose कोई तो फर्स्ट रूल इज लाइक दिस, दैट अगर सपोज कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड कोई नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स प्लस एंड माइनस, इट्स रिजल्ट विल ऑलवेज बी माइनस.
अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड ए नेगेटिव इंटीजर है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। एंड सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है एंड पॉजिटिव इंटीजर है, इसका भी जो रिजल्ट होगा वो भी नेगेटिव इंटीजर होगा। अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। एंड एट लास्ट अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा ये भी पॉजिटिव होगा। सो व्हाट आई हैव रिटन, when if we take one positive integer and a negative integer, the result will be a negative integer. Similarly, if we take a negative integer and a positive integer, the result will be a negative integer. If we take two positive integers, the result will be a positive integer. If we take two negative integers, the result will be a positive integers. Okay. So अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। सपोज मैं यहाँ कोई नंबर लेता हूँ -6 -4। सो इसका रिजल्ट आप सभी को पता होगा, 6 - 4 इज ऑलवेज 2। बट द पॉइंट इज अब यहाँ साइन कौन सा होगा। सो इधर इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस मीन्स दैट्स व्हाई आई हैव डन 6 - 4। अब आप हमेशा साइन के थ्रू हम हमेशा सम को करने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले क्लासेस में डायरेक्ट जैसे कि 6 - 4 = 2 या फिर 2 - 2 = 0 ऐसे किया था। लेकिन अब जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे हम इस रूल के थ्रू सम्स करेंगे। सो इसका आंसर क्या हो गया 2। एंड ऑलवेज मेक श्योर व्हाइल एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग टू इंटीजर्स, जिस नंबर के पहले जिस बड़े नंबर के पहले जो साइन होगा, जैसे कि यहाँ 6 के पहले एडिशन का साइन, ओके। सो यहाँ इसीलिए 2 पॉजिटिव है, 6 - 4 इज 2 एंड सिंस द पॉजिटिव साइन इज मीन्स जो पॉजिटिव साइन है वो 6 के पहले, इसीलिए इसका जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। अब अगर इसी के जगह मैं ऐसा लिखता कि -6 + 4, तो यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा, माइनस प्लस इक्वल्स माइनस। तो -6 एंड हियर +4 means its result will be 2। बट अब पॉइंट ये है कि साइन क्या होगा। सो व्हाट आई हैव सेड, जो बड़ा नंबर है उससे पहले जो साइन होगा वही जो रिजल्ट होगा उसका साइन होगा। मीन्स यहाँ बड़े नंबर से पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसके पहले कौन सा साइन होगा, माइनस का साइन होगा। सो दिस इज द जनरल आइडिया टू determine the result, the sign of the result of the integer। So अब हम देखते हैं कि अगर हम दो इंटीजर्स को पॉजिटिव लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एंड तो अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं तो उसका साइन क्या एज रिजल्ट क्या आएगा। सपोज मैं यहाँ लेता हूँ -9 - 6। सो माइनस इज ऑलवेज प्लस। अगर सेम साइंस है तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐड होगा। मीन्स 9 + 6, तो 9 + 6 क्या होता है, 15। और माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ जो साइन होगा ये इट विल बी माइनस, बिकॉज जो
9 है वो बड़ा नंबर है, उससे पहले भी माइनस का साइन है। सिमिलरली अगर मैं -6 -9 लिखता तो उसका जो आंसर होगा वो भी 15 होगा, बिकॉज माइनस माइनस विल बी प्लस एंड द साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर, मीन्स 9 के पहले जो साइन है वो यहाँ आ जाएगा, मीन्स इट विल बी नेगेटिव। So these are some of the basic rules which we have to keep in mind while adding or subtracting integers. So यहाँ हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट। ओके, so now let's move on to the third point, which is additive properties. Sorry. तो बेसिकली इसके 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हम एक एक करके प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला प्रॉपर्टी है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। The first property is commutative property. अब ये commutative property क्या है? So, इसको समझने का भी एक बेसिक ट्रिक है। सपोज मैं अगर बोलूं a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। सपोज अगर मैं बोलूं आपको 4 प्लस 6, क्या ये इक्वल होगा 6 प्लस 4 के? यस, बिकॉज 4 प्लस 6 इज ऑल्सो 10 एंड 6 प्लस 4 इज ऑल्सो 10. So a plus b is equals to b plus a. This is commutative property all about. So now the next topic is, the next property is associative property. तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, मीन्स अगर मैं बोलूं आपको कि 2 प्लस 4 प्लस 5, अगर मैं 4 प्लस 5 को मीन्स पहला जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो नंबर्स है इसको ऐड करने के बाद उसको मैं अगर 2 से प्लस ऐड करूं, या फिर अगर मैं 2 प्लस 4 मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट मीन्स 2 और 4 को ऐड करने के बाद उससे अगर मैं 5 से ऐड करूं तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, मीन्स 4 प्लस 5 इज 9 and here 4 plus 2 is 6 plus 5, 9 plus 2 is also 11 and 6 plus 5 is also
11. So this is associative property all about. So अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे, which is repeated addition. अब रिपीटेड एडिशन क्या होता है? लेट्स सपोज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, क्या ये इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 4k? मीन्स अगर मैं 2 को 4 बार ऐड करूं या फिर अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा? देखते हैं. 2 प्लस 2 मीन्स 4, 4 प्लस 2 मीन्स 6, 6 प्लस 2 मीन्स 8. Its answer will be 8 and 2 4s is also 8. So ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं किसी भी नंबर को रिपीटेडली ऐड कर रहा हूँ वो इक्वल होगा अगर मैं उसी नंबर को जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है उससे ऐड करूँ तो, सॉरी उससे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो. मीन्स अगर मैं किसी नंबर को रिपीटेडली ऐड कर रहा हूँ वो इक्वल होगा उस नंबर को मैं अगर जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा. मीन्स हियर 2 is repeated 4 times, so that's why I have multiplied 2 with the 4. So यहाँ हमारा एडिटिव प्रॉपर्टीज होता है खत्म. So the last point which we were going to discuss today is integer sign. Integers sign. इंटीजर्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के समय उसके साइंस मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा उसका साइन क्या होगा उसको कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं. सो पहले हमें जो बेसिक्स रूल है पहले हम वो लिख लेते हैं. पहले मीन्स एडिशन सब्सट्रैक्शन इट्स रिजल्ट विल बी सब्सट्रैक्शन एंड मीन्स सब्सट्रैक्शन एडिशन इज इक्वल्स टू सब्सट्रैक्शन, एडिशन इक्वल्स टू एडिशन, subtraction equals to also addition. So -6 plus 2. तो इसका रिजल्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे? 6 plus 2 मीन्स -6 plus 2 मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 6 minus 2 is 4. लेकिन साइन क्या आएगा? ऑलवेज मेक श्योर कि जो बड़ा नंबर है उसका साइन, उसके पहले जो साइन है उसका रिजल्ट में वही साइन अप्लाई हो जाएगा. मीन्स हेयर 6 के पहले क्या साइन है? माइनस का, सो 4 के पहले भी माइनस का साइन आ जाएगा. मीन्स इट्स रिजल्ट विल बी -4. सो इट्स रिजल्ट विल बी -4. अगर इसी के जगह 6 minus 2 रहता तो इसका आंसर क्या होता? 6 minus 2 is 4. साइन क्या आता? 6 के पहले कुछ नहीं, मीन्स ये एडिशन का साइन है तो ये एडिशन का साइन ही रहेगा. इधर कुछ नहीं, अगर आप एडिशन का साइन यहाँ नहीं भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ऑपोजिट साइन को सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव. और साइन कौन सा होगा?
पॉजिटिव मीन्स जो ग्रेटर नंबर है उससे पहले जो साइन है उसका साइन यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 7 + 3, 7 के पहले कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है, मीन्स यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ये वाला, मीन्स प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस। 7 + 3 इज 10। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर के पहले जो साइन है वो आएगा, मीन्स इट इज पॉजिटिव। मीन्स अगर नहीं लिखते तो चलेगा। उसके बाद अगर हम -7 - 3 लिखते हैं तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये वाला, मीन्स माइनस माइनस इज प्लस, मीन्स 7 + 3, मीन्स 7 + 3 इज 10। बट साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर के पहले जो साइन है वो आ जाएगा, मीन्स 7 के पहले क्या साइन है, नेगेटिव, तो इट विल बी -10। अब हम देखते हैं कि अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। सो अगर मैं बोलूं आपको -6 × -2, इसका रिजल्ट क्या है, 6 2 = 12, सिंपल सी बात है। एंड इसका जो साइन आएगा, पहले ये कौन से फॉर्म में है देखिए, माइनस इधर भी है इधर भी है, मीन्स ये इस वाले रूल के साथ मैच करती है, मीन्स माइनस माइनस विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस इस यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, तो 6 2 = 12 एंड द साइन विल बी पॉजिटिव। अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, से अगर मैं -6/3 करता हूँ, 3 के पहले कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मैं -6/3 करता हूँ तो 3 2 = 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। लेकिन अब साइन क्या होगा, मैंने हमेशा बोला है कि मीन्स माइनस एंड प्लस ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस, सो यहाँ हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते समय हम जो बड़ा नंबर है उससे पहले जो साइन है हम उसको देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते समय हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। मीन्स अगर माइनस इंटू माइनस है तो उसका जो रिजल्ट आएगा उससे पहले पॉजिटिव साइन लगेगा। एंड डिवीजन के वक्त अगर माइनस कोई नंबर है तो माइनस प्लस इक्वल्स टू -2, मीन्स उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा। सो यहाँ हो जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट इस चैप्टर का खत्म। सो इससे रिलेटेड मैं एक सम आपको कराता हूँ, आप अपने बुक्स में देखिएगा एक्सरसाइज 1.1। पेज नंबर 4।
इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, आप डिमांड कीजिएगा, आपके डिमांड में वो जो डाउट्स रहेगा ये आपको यहाँ बता दिया जाएगा. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डू द फर्स्ट सम. फर्स्ट सम का मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाऊंगा एंड द रेस्ट विल बी योर होमवर्क. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस टू बी डिड एज होमवर्क. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपरली जो क्वेश्चन है उसको आप प्रॉपरली पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ क्या बोला है, द फॉलोइंग नंबर शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस of different places on a particular day. So यहाँ एक नंबर लाइन दिया गया है इस तरह का. Here it is positive signs. Is negative signs, means -5 and एंड ये हमेशा याद रखना कि -1 इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स. -1 is one of the biggest negative integers. Okay, कैसे दिया है, इट इज लाहौल स्पीति. इट इज श्रीनगर. इट इज शिमला. Is Ooty. You all might have visited, कभी ना कभी आपने कभी ये इस जगहों में विजिट किया होगा. So this could be bit familiar to you, these names. And at last it is Bangalore. तो अब ये हो चुका है हमारा. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर लाइन. देखो 0 से लेके 5 तक इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 से लेफ्ट साइड मीन्स ऑल देयर इट इज़ नेगेटिव इंटीजर्स. सो नाउ लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट डाउन द टेम्परेचर्स ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. सो पहले तो हम जो इंटीजर है उसको लिख लेंगे कि कौन से पॉइंट में कौन सा नंबर आता है. मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 and 15 16 17 18 19 and 20 and 21
22, 23, 24 and at last it is 25. सिमिलरली नेगेटिव साइड, मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव साइड ऑलवेज जीरो से भी स्टार्ट होगा. नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, ऑलवेज इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. जीरो से स्टार्ट करते हैं. 0, -1, -2, -3, -4, -5 and -6, -7, -8, -9 and -10. So अब it will be a bit clear to you that what is the temperature and how it will be written here. So अब लिखते हैं. तो लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर है? -8. लाहौल स्पीति इक्वल्स -8 and श्रीनगर इक्वल्स -2. It is written here. And at Shimla it is 5. It was written as earlier. Shimla it is 5 and Ooty it is 14. And at last Bangalore it is 22. Bangalore it is 22. इस तरह से हमने जो टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस है उसे मार्क करके यहाँ दिखा दिया है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट. सो अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या पूछते हैं. यहाँ बोला है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव. सो अब यहाँ का कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? लेट्स सी. इट इज लाहौल स्पीति बिकॉज इट इज -8. जितना यहाँ मीन्स जितना जीरो से जितना नीचे जाता जाएगा मीन्स उसका जो ये है मीन्स नंबर है वो भी कम होता जाएगा. सो कोल्डेस्ट प्लेस इज -8. लाहौल स्पीति इज -8 and hottest place is Bangalore. Bangalore is positive 22. Here it is positive side, that's why it is positive 22. So अब यहाँ क्या पूछा है? What is the temperature difference? Difference means अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 मीन्स 10 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो आप क्या करोगे? इसको 10 से 5 माइनस करोगे तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? 5. सिमिलरली हमें इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. मीन्स हॉटेस्ट प्लेस क्या है? 22 माइनस -8. अब आप देखो मैंने यहाँ -8 माइनस 2 बार क्यों लिया है? सिंस हमें यहाँ डिफरेंस से निकालना है इसीलिए हमने माइनस साइन लिया है. और -8 ये तो पहले से ही था ना, इसीलिए हमने इसको एज यूजुअल लिख दिया है यहाँ. अब हम इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे. सो 22 माइनस माइनस इज प्लस. माइनस माइनस इज प्लस एंड इट इज 8. So 22 plus 8 is 30. So it is the difference between the hottest and the coldest place is Lahaul Spiti and Bangalore. So ऐसा हम सिंपल से ऐसे भी समझ सकते हैं. बैंगलोर का सीधे जस्ट सी द दिस नंबर लाइन. सो यहाँ क्या है? 22 से हम शुरू करेंगे. ठीक है, हम लोग इधर नॉर्मल काउंटिंग करेंगे.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and it is 30. इसीलिए मीन्स 22 से लेके -8 तक जितना भी पॉइंट्स है उसका टोटल होता है 30. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस. सो ऐसे आप इस सम को चेक भी कर सकते हो कि ये मैंने सही किया है कि नहीं. सो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ करवा दिया है. यू ट्राई टू डू द थर्ड एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ द सेम क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1. So your homework will be question number 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो मैंने करवा दिया है. सो इसके जगह आप करना थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. यू ट्राई टू डू थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन and at the same time you can try question number 2 and question number 4. You may try to do this at your home. If any doubt, any queries, you can demand for it. आपके डिमांड में वो क्वेश्चन यहाँ इसका आंसर यहाँ करवा दिया जाएगा. सो आई होप ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पसंद आया होगा. सो आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वीडियो on the same chapter, and until then take care, stay safe.